ہے یہ تو حال ہے آپ لوگوں کا، یہ تو حال ہے آپ کا۔ بھائی آپ پوچھ رہے ہیں میں نبی جواب کریم دے صلی رہا اللہ علیہ ہوں۔ وسلم کی حدیث ہے نا جی کہ 21ویں صدی کے عالم بندر سور خنزیر ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ۔ السلام ایسی علیکم کوئی ورحمۃ حدیث اللہ نہیں، وعلیکم وبرکاتہ السلام، استاد ایسی کوئی حدیث محترم، نہیں بھائی۔ وعلیکم السلام عابد بھائی، ایسی کوئی کیا حدیث حال ہے نہیں ہے، سر؟ ٹھیک ٹھاک؟ یہ مرزا جی نے جھوٹ بولا۔ میں ٹھیک ہوں وہ الحمدللہ۔ کدھر چلے گئے ہیں؟ وہ کدھر چلے گئے ہیں؟ اس کو وہ کیا کہتے ہیں، باتھ روم جانا تھا، ٹائم آ گیا، وہ باتھ روم سے ہو کے آئیں گے۔ سر ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ آپ کے کیلیبر کے نہیں ہیں، یہ ان کے پاس علم تو کیا الف بے بھی نہیں جانتے، تو آپ جو ہے نا وہ اپنے جو کیلیبر کے لوگ ہیں ان سے بات کیا کیجیے، میری یہ آپ سے درخواست ہے سر۔ ٹھیک ہے بھائی جان، جزاک اللہ۔ کوئی نہیں تھا، اس نے سوال کیا، ہمارا تو فرض بنتا ہے کہ جواب دے دیں بھائی جان۔ جی بالکل۔ آپ پہ سوال کرنے شروع کر دیتا ہے تو یہ چیز صحیح نہیں۔ وہ اس کو پیشاب لگ گیا نا، پیچس لگ گیا۔ نہیں، مجھے اگر میں نے ایک دو بار بیچ میں سلام کیا ہے کہ شاید استاد محترم کہیں کہ عابد سے بات کر لو، میں اس کو بتاتا کہ 52 سال تک مرزا صاحب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے آسمان پہ لے کے گیا ہوا تھا۔ نہیں وہ ٹھیک ہے، کوئی بھی سوال کرے، لیکن بدتمیزی پہ اتر گیا، کود کے آ جائیں گے، یہ تعلیم اصل جو میں ہے۔ اصل میں سر پتہ کیا ہے، یہ ان کو تعلیم دی جاتی ہے۔ مرزا غلام قادیانی صاحب نے بھی یہی کہا، آگے ان کے بچوں نے بھی یہی تعلیم دی، تو وہ پھر کیا کرے، وہ تو عادت سے مجبور ہے یہ لوگ۔ چلیں کیا کیا جا سکتا ہے بھائی۔ نہیں آپ دیکھیں مرزا صاحب کی تعلیم دیکھیں نا، کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو پورا اسلام جھوٹا ہے۔ جی بھائی جی جی، تمہارے ایک جھوٹے ہونا سے اسلام کو کیا فرق پڑے گا؟ بھائی اسلام کیسے جھوٹا ہو گیا؟ المرء یقیس علی نفسہ۔ اچھا عابد بھائی، جو میں آپ سے پوچھ رہا تھا، آپ نے مجھے وہ بھیجا نہیں۔ سر آپ کا نمبر نہیں ہے نا میرے پاس، میں نے اس ٹائم بھی درخواست کی تھی آپ سے سر۔ چلے کوئی بات نہیں، کیا میں نے ویسے پوچھا تھا آپ سے؟ آپ نے مجھے وہ مولانا رشید احمد گنگوئی جو ہے ان کے بارے میں وہ بات ہو رہی تھی کہ آپ نے وہ پوچھنا تھا کہ جس میں وہ تمام یعنی کہ احمد رضا خان بریلوی صاحب نے جس میں تمام ان کو دیوبند کو کافر کہا ہوا ہے، جتنے بھی اس ہاں کے ہاں ہاں، پیروکار ہیں فالوورز ہیں۔ جی سمجھ گیا، جی جی۔ مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ اس نے اتنی جلدی دھڑک کیوں لگا دی۔ کہہ رہا میں ایک سوال پوچھنا ہے، میں سب سے پوچھ رہا ہوں، کوئی بندہ نہیں مل رہا، جب جواب ملا ساتھ ہی بھاگ گئے۔ بھائی جان ان کو اگر آپ کے پاس فرینڈ لسٹ میں ہے تو اس کو دوبارہ انوائٹ کریں، آئے نا ذرا پوچھے سوال ذرا آ کے۔ ان انوائٹ کو تو کر 10 رہے تو ہیں۔ وہ فارغ ہو جائے، باتھ روم سے فارغ ہو جائے، پھر آتے ہیں۔ میں صرف ایک سوال پوچھوں گا، زیادہ نہیں پوچھوں گا۔ دولاب لگ گئے تھے نا بھائی اور جان، ملک صاحب کیا حال ہے سر؟ اصل میں ٹھیک ہے ملک شکر صاحب؟ دوائی کھائی ہوئی تھی بیچارے نے۔ اتنی تیزی ہوتی ہے ان لوگوں کو، اتنی تیزی ہوتی ہے، بھاگ 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 کے آتے ہیں، بھاگتے بھاگتے بھاگ جاتے ہیں۔
वो पहले बात तो पूरी सुन ले। अगर कुछ तुम्हें नॉलेज मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है, तो बैठ के सीखो। अच्छा चले, मैं इस चीज़ का फ़ायदा उठा के मलिक साहब आपसे और उस्ताद मोहतरम से एक सवाल करता हूँ। जी जी। मेरा सवाल ये है कि अब है 2025, ठीक है जी। अच्छा। मैं कहता हूँ कि 2015 में मुझे अल्लाह ने कुरान सिखा दिया था, उसके सारे पोशीदा राज सब कुछ समझा दिए थे। तो 2015 से लेकर 2020 तक मैं कुरान पाक का एक तर्जमा करता हूँ आयात का, मुख्तलिफ आयात का, और 2020 के बाद मैं उन्हीं आयात का तर्जमा बदल देता हूँ। तो इन दोनों सूरतों में मैं पहले या तो अल्लाह ताला के हुक्म का नाफरमान हूँ या बाद में अल्लाह ताला के हुक्म का नाफरमान हूँ, या तो पहले मैंने तर्जमा जो अल्लाह ताला ने मुझे कुरान सिखाया उसके मुताबिक किया है या बाद में किया है। तो दोनों सूरतों में मैं एक सूरत में लाजमी गुमराह बनता हूँ। क्या ये मेरा इस्तदलाल ठीक है? बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अच्छा, मैं दोनों सूरतों में किसी एक सूरत में गुमराह नहीं ठहरता, अल्लाह ताला के बिल्कुल हुक्म की नाफरमानी नहीं करता। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक नहीं है? मैं कह रहा हूँ गुमराह ठहरते हैं ना आप। हाँ जी, एक सूरत में तो लाजमी मैं गुमराह ठहरूंगा, राइट? हाँ जी, या पहले आपने झूठ बोला है या बाद में आपने झूठ बोला है। जी, तो जो झूठ बोले वो यानी कि जो अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी करे तो वो तो फिर गुमराह है। गुमराह, बिल्कुल ऐसे ही। जी जी, बिल्कुल सही हो गया जी। उस्ताद मोहतरम, आप क्या जवाब देंगे इसका? मैं तो ये कहूँगा ना भाई कि जब 2015 में अल्लाह पाक ने आपको सिखा दिया कुरान मजीद, तो 2025 में आकर वो सिखाया हुआ आप भूल गए होंगे, क्योंकि अल्लाह ने तो सही सिखाया, आप भूल गए होंगे। और हो सकता है कि कोई पागल वगैरह इस तरह का कोई मामला हुआ होगा, या कोई लालच ने आपको मजबूर किया होगा, कोई बारी लालच आपको मिल गई होगी, कोई फ़ायदा ज़रूर दुनियाई होगा, या आप पागल होंगे या कोई दुनियाई फ़ायदा के लिए आपने फिर जो है दूसरा उल्टा सुल्टा लिखना शुरू कर दिया। लेकिन किसी एक सूरत में मैं गुमराह तो हो गया ना। नहीं, उस सूरत में जो अल्लाह ने सिखाया उसमें तो गुमराह नहीं हुए, लेकिन बाद वाली सूरत में आप ज़रूर गुमराह हुए। जी बिल्कुल ठीक, शुक्रिया बहुत बहुत। वैसे मिर्ज़ाई जो उनसे वो नापैद नहीं हो गए अपना नहीं भाई? ये सब मिर्ज़ाई हैं, आप हैं, मैं हूँ, और खालिद हैं, ये आबिद हैं, ये सब मिर्ज़ाई। भाई आपको नहीं मालूम कि आप पे आपका जो है वो फतवा आ गया है कि आप मिर्ज़ाई हैं? अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये सब हम लोग मिर्ज़ाई घूम रहे हैं ना भाईजान यहाँ पे। अच्छा मलक साहब, एक और सवाल। मलक साहब, जी जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अच्छा मलक साहब, मैं ये कहता हूँ कि मैंने एक बात की थी, एक ख्वाब सुनाई थी। जिस दिन मुझे ये ख्वाब आई थी उससे अगले दिन ही मैंने मलक साहब को सुना दी थी। मलक साहब मेरे गवाह हैं, ठीक है। लेकिन मलक साहब आते हैं, वो कहते हैं कि ऐसी तो कोई बात ही नहीं, इसने तो मुझे कोई बात सुनाई नहीं थी ख्वाब ऐसी कोई भी। लेकिन मैं बज़िद होता हूँ कि नहीं, मलक साहब मेरे गवाह हैं। तो इस सूरत में क्या होना चाहिए? मैं झूठ बोल रहा हूँ? आप बोल रहे हैं या मैं बोल रहा हूँ? जी
मैं बोल रहा हूँ ना, क्यों? मैं तो झूठे मैंने से आपको ख्वाब मैंने तो आपको कोई ख्वाब सुनाई ही नहीं है, सिर्फ आपका नाम ले दिया है। हाँ वही ना। तो इस सूरत में भी आप झूठे हैं या मैं झूठा हूँ? नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ अच्छा कि अच्छा, आप मेरे पे झूठ सही, बांध रहे हैं। आपने वो तो मुझे ख्वाब सुना ही नहीं है। जी जी, सही, आप झूठ बोल रहे हैं, आपने मुझे कोई ऐसी ख्वाब तो सुना ही नहीं है। सही। ये सारे झूठ मेरा ख्याल है कि मिर्जे ने बोले हैं। जी बिल्कुल। अच्छा भाई, आपको उनको पता कोई है लाला लाला श्रमपत राय तो लाला मलावा मल, हाँ, इन दोनों के नाम पता है ना आपको? सुने हुए हैं। मिर्जा साहब ने बड़े इल्हाम और अपनी कुछ पेशन गोइयां जो है उनका गवाह इन दोनों को बनाया हुआ है, पता है आपको? अच्छा, जी, ब्राहीने अहमदिया किताब लिखी थी ना, ये यार लाला आप मलावा मल, लाला मलावा मल पता क्या कहता है? लाला मलावा मल कहता है कि इसने एक इश्तहार दिया था नूर अफशां अखबार के अंदर 4 नवंबर 1886 को। अच्छा, ये लिखता है कि ठीक है, हमारी जान पहचान थी मिर्ज़ा साहब से, तकरीबन जिस दिन ये इश्तिहार दे रहा है उस वक़्त ये लिखता है कि तकरीबन 12-14 साल से मिर्ज़ा साहब के साथ हमारी जान पहचान है। अच्छा, और फिर लिखता है कि आज से तकरीबन 6-7 साल पहले, यानी कि 1886 से 6-7 साल पहले, कहता है कि ये उस वक़्त की बात है जब कुछ अखबार नवीसों ने, यानी कि ये जो खबरें लिखते हैं ना कालम नगार, हम्म, कालम नगारों ने जब नवाब हसन खान भोपाली, जिन्होंने हजाजुल करामा किताब भी लिखी जिसके हवाले काफ़ी मिर्ज़ा ने दिए हुए हैं अपनी किताबों के अंदर, नवाब हसन खान भोपाली, ठीक है जी, उसके बारे में अखबार नवीसों ने उसको मुजद्दद का खिताब दे दिया था कि ये मुजद्दद है, ये बंदा मुजद्दद है, अच्छा, ठीक है जी। उस वक़्त हकीम मौलवी मोहम्मद शरीफ कल्लानुरी, जो मिर्ज़ा साहब के बड़े अच्छे दोस्त थे, उन्होंने मिर्ज़ा साहब को कहा तू भी मुजद्दिदी का दावा कर दे। और थे रख। इश्तिहार मौजूद है। तो इस इश्तिहार को पंडित लेख राम ने जो अपनी किताब लिखी थी ना, तकरीब ब्राहीने अहमदिया, हाँ, तकरीब ब्राहीने अहमदिया जो 1888 में पब्लिश होके मार्केट में आई थी, उसके अंदर भी उस पंडित लेख राम ने इस इश्तिहार को नकल किया हुआ है। अच्छा, ये जो भाई ऊपर आए हैं, पता नहीं क्या नाम है, अंकल अंकल है कि क्या लिखा हुआ है? ये अपने भाई हैं, अपने भाई हैं। ये अपने भाई हैं। अंकल क्रिप्टो, अंकल क्रिप्टो, जी अच्छा, हाँ जी, ये अपने भाई हैं, माशाल्लाह। तो पंडित लेखराम ने भी इसको, और मिर्ज़ा साहब ने भी अपनी किताब के अंदर इस इश्तिहार को माना है कि हाँ उन्होंने ये इश्तिहार दिया था, लेकिन इस बात की तरदीद नहीं की कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो मुजद्दद अल्लाह ताला ने कब बनाया, किसी के कहने पे मैं नहीं बना, ये तरदीद नहीं की। ये एक्स साहब भी आ गए हैं। ये एक्स साहब कौन है? एक्स भाई, जी इनका मुझे हेलो, नहीं पता। ऐसी जी भाई, थोड़े कम दीदी, क्या हाल है? सब कैसे? जी बिल्कुल सब ठीक ठाक है। जी आप खैर, बताएं, ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। आप जमात अहमदिया से हैं?
नहीं भाई। अच्छा अच्छा। गुलाब जामुन साहब, आप जमात अहमदिया से हैं? ये शायद के बारे में हमने पूछना है। जी जी व मुबश्शिर बिर रसूल जी जी, याति मिन बादि ये इस्मुहु है अहमद। जमात अहमदिया से हैं जी गुलाब जामुन साहब। गुलाब जामुन साहब बताएं आप, क्या ये इस आयत के मिसदाक मिर्ज़ा साहब हैं नहीं आपके? जी, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। वाह, कमाल हो गया, कमाल हो गया, ज़बरदस्त। उससे पहले पूछ तो ले जमात अहमदिया से है कि नहीं, नहीं, फिर वो कमाल जमात कर। अहमदिया से ही लग रही है वो। जी मुझे नहीं उससे लोग पहले। जानता है मिस्टर एक्स। अच्छा, आप जमात अहमदिया से हैं? खुशी हुई सुन के। ये हमारे बहुत ही मोहतरम भाई तशरीफ लाए हैं, बाबर मेहर साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मिर्ज़ा साहब की मौजूदगी में जी एक नहीं काफ़ी बने। वो अब्दुल हकीम पटियालवी जो है, जब वो मिर्ज़ा साहब से अलहदा हुआ था तो काफ़ी बंदे मिर्ज़ा साहब को छोड़ के उसके साथ हो गए थे। फिर उसके बाद गुलाम वो क्या है उस बंदे का नाम क्या था, एक और बंदा भी था, काजी यार मोहम्मद जो है, ठीक है, ये भी जब ये अलग हुआ तो कुछ बंदे इसके साथ भी हो गए थे। तो ऐसे तो काफ़ी होते रहे हैं जी बाबर मेहर भाई। जी जी गुलाब जामुन साहब थोड़ा ऊंचा बोले। जी जी, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, बाबर मेहर भाई, बाबर मेहर भाई बोल रहे हैं। जी सबसे स्ट्रॉन्ग जो है वो मोहम्मद अली और ख्वाजा कमालुद्दीन थे। वो भी मिर्ज़ा की ज़िंदगी में ये तो कहते हैं ना कि नहीं, वो तो जब भी खिलाफत मिर्ज़ा महमूद को मिली तो उस वक़्त वो, हालांकि इनके ख्वाजा कमालुद्दीन और मोहम्मद अली लाहौरी के इख्तलाफात मिर्ज़ा साहब की ज़िंदगी में 1897 से शुरू हो गए थे। इनके इख्तलाफात मिर्ज़ा साहब के साथ। लेकिन ये अलग नहीं हुए, लेकिन इख्तलाफात काफ़ी हो गए थे इनके मिर्ज़ा साहब से। ये मिर्ज़ा साहब के ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगाते थे कि जो चंदे के और लंगर के पैसे इकट्ठे होते हैं, इतना खर्चा होता नहीं है, तो बाकी पैसे किधर जाते हैं मिर्ज़ा साहब की ज़िंदगी में। जी जी, इसने उस वक़्त एमए इंग्लिश किया हुआ था, और इसमें बरे सगीर के अंदर सबसे पहला इंग्लिश ट्रांसलेशन कुरान की करने वाला यही बंदा था, मोहम्मद अली लाहौरी। ये सर लाहौर का था, इसका इतना नहीं पता मुझे फैमिली बैकग्राउंड का। जी इतना पता है कि ये लाहौर का था। हाँ जी राणा साहब, ये की जी हाल है? हमारे ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਯਾਦ ਰਹਿਣੀ ਸੀ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ। की हो गया है? ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। भेजो मैंने वीडियो। नजब साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातहू। सलाम आमद भाई, माजरत मैं नहीं कर सका। की हाल है, ठीक हो? जी वीडियो भेजो। बिल्कुल खैरियत सर, सानू भी दस दवो ज़बानी थोड़ा थोड़ा। या सर सानू भी दस दवो ज़बानी थोड़ा थोड़ा, ताकि असी भी अवेयर रहिए। ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੱਪੂ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕਰਕੇ ਆਈਡੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਰਜ਼ਈ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੰਬਾ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖੀ ਹੈ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖੀ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੂਜੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ। लो जी सही गल है। ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ हेलो जी। अच्छा चौहान साहब आए हुए हैं, भाईजान चौहान साहब आए हुए हैं। मतलब वो सूल ना आप कड़िया
ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਸਹੂਲਤ ਚ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜੀ ਲਾਹਨਤ ਤੇਰੇ ਫਲਾਣੇ ਤੇਰੇ ਲਾਹਨਤ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ। अच्छा भाई ਉਹ ਤੇ ਜੱਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜੰਬੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਤੂੰ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਜੱਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜੱਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ। ਕੋਈ ਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ठीक है। वो ये कह रहा था कि जी जम्बा साहब की शक्ल देखें, तो मैंने कहा अगर शक्ल पे इतराज है तो फिर मिर्जा साहब की शक्ल पे भी इतराज इतने लोगों ने किए हुए हैं। ਫਿਰ ਜ਼ਾਤੀ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਨਾ ਰੌਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਅਟੈਕ ਤੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਕੰਮ। अस्सलाम वालेकुम तारक चौहान साहब, क्या हाल है मोहतरम? वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? आमिर भट्ट साहब भी आए हैं। आमिर भट्ट साहब आप जी कौन है? बिल्कुल खैरियत, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तारक चौहान साहब, पहली बात तो ये है कि ये शक्ल तो अल्लाह ने बनाई है, चाहे किसी की भी बनाई है, बिल्कुल इसकी भी बनाई है, हाँ। तो इसके ऊपर तो एतराज होना ही नहीं चाहिए किसी को। आबिद भाई बिल्कुल सही बात है आपकी। आबिद साहब भी अगर मेरे इख्तियार में करे होता सर। तो मैं दुनिया का खूबसूरत और ताकतवर तरीन बंदा बनता, पर मेरे इख्तियार में तो नहीं, अल्लाह ताला की मर्जी है। जी मोहतरम अस्कानी साहब, हाजिर हूँ सर। हाँ भाई मेरे दो सवाल हैं। पहले ये कि अभी जो आप मोहम्मद अली लाहौरी के बारे में बता रहे थे, हाँ और पीर बाबू साहब एक सेकंड, ये आमिर भट्ट साहब से पूछ लें, ये अपने बंदे हैं ये मर्जियों की तरफ से हैं? ये अपने ने जी जनाब मैं मुसलमान हूं अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जी। ਇਹ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਪੱਪੂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਆ ਗਿਆ। उत्ते बुलाओ उसना। आमिर भाई जरा 2 मिनट थल्ले होना। मनो उतार दो, कोई मसला नहीं। मैं नीचे जा रहा हूँ। मैं नहीं पीर साहब की साहब करते हो? नहीं नहीं मुझे उतारे, मैं उतर जाता हूँ यार। पीर भाई- साहब क्या करते हो आप, किधर जा रहे हो? मैं आपकी वजह से तो ब्राड ऑन किए तो आप जा रहे हो। ਪੱਪੂ ऑफिशियल ਕਰਕੇ ਆਈਡੀ ਹੈ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਮੋਡਰੇਟਰ हाँ हुणी ਇੱਥੇ ਹੀ बैठा सी साडे कोल ही। पीर साहब खालिद आप हैं तो हम हैं। खालिद भाई मेरे बड़े हैं, आप जानते नहीं, मुझे अफसोस है। आपकी वजह से तो हम यहाँ बैठे हैं, आपके दीदार के लिए। खालिद भाई मेरे बड़े हैं ना भाई। जब आप हमें दीदार नहीं कराते तो फिर हमें बड़ा दुख होता है। खालिद भाई उम्र में शायद बड़े हों लेकिन इल्म में नहीं है। कभी अपनी तस्वीर इल्म में भेजें आप पीर बड़े साहब, सब कुछ है वो मेरे लिए, सब कुछ है। कभी अपनी अच्छा भाई। तस्वीर मुझे भेजें मैं ताकि उधर गाली बाजों को दूं। 2 सवाल मेरे हैं आबिद भाई से। आज ही अब आप करें सवाल। आबिद भाई नोट कीजिए, दोनों सवालों का जवाब आज मुझे हर हाल में चाहिए, हर हाल में। नहीं शायद आपकी आवाज ना जा पाए। चलिए ठीक है, कोई मसला नहीं। भाई को आवाज जा नहीं रही शायद। नहीं आवाज पीर साहब उनके की आवाज सिग्नल नहीं ठीक आ रही है। पीर साहब की आवाज ठीक आ रही है। नहीं वो आबिद भाई की नहीं आ रही, उनके सिग्नल सही नहीं है। ਆਬਦ ਭਾਈ ਨੇ ਵੈਸੇ ਮਿਊਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੁਣ ਅਨਮਿਊਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਜੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ नहीं वो सिग्नल होना तो नहीं सही नहीं, रेड ने। ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੱਧਰ ਰਹਿ ਗਏ ਖਾਲਿਦ ਪੱਪੂ ਭਾਈ। ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਹਿਬ? ਉੱਤੇ ਆਓ ਕਾਲ ਤੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕਰੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੋ। उससे ऊपर बैठे रहो खालिद भाई, नीचे नहीं उतरना। ਉਹ ਚਲੀ जी उस्ताद मोहतरम, आपकी आवाज़ आ रही है, जी हुक्म कीजिए। दो सवाल है, उनका जवाब चाहिए। पहला सवाल यह है कि मिर्जा जी ने नबूवत का दावा कहाँ किया साफ लफ्जों में, वो स्कैन आज मुझे दे दो हर हाल में। दूसरा जो है जवाब ही है फिर जी फिर जवाब ही है। मेरा ऐसा कोई दावा नहीं। अब इस तमाम तहरीर से मतलब मेरा ये है, भैया आबिद साहब को मुझे जवाब वो चाहिए, उनसे लाजम। जाहिल मुखालिफ मेरी निस्बत इल्जाम लगाते हैं कि ये शख्स नबी या नहीं। रसूल होने का दावा जी करता है। सर,
मेरा ऐसा साफ कोई दावा साफ अल्फाज संजीदगी से साफ प्लीज। अल्फाज में तो कहीं पे भी नहीं दावा है। बस जियोते रहो जी, जिਉਂਦੇ रहो, सही गल है। हाँ, तो फिर ये क्या तो तमाशा बनाया हुआ है भाई? तो जो ये दावा खत्म है नबूवत का कारोबार भी बंद ठप करें अब। क्या तमाशा बनाया है? वो जो दावा है वो असल वो क्यों नहीं बताते भाईजान? एक तो ये, इस पे आप बाद में बात करेंगे। दूसरा ये कि जो अभी आपने पूछा मोहम्मद अली लाहौरी के बारे में, बाबर साहब ने आपसे सवाल किया कि इसका पीछे फैमिली बैकग्राउंड, आपने कहा आपको नहीं मालूम। मैं ऐसे सोच रहा था, अचानक जो है वो शुक्र की हालत में चला गया। शुक्र मेरा क्या जी, मेरा गुमान है बाल्मीक खानदान से क्यों ना हो कहीं। नहीं सर, मैं किसी को भी बाल्मीक खानदान से नहीं मानता। अफसोस हुआ। ठीक है, अब वो मुझे दे दो, वो क्या नाम है अपना, मिर्जा जी का दावा। नहीं वो तो उन्होंने बता दिया कि है नहीं दावा, तो कहाँ से देंगे आपको? तो फिर ये तमाशा क्या है भाई? मिर्जा साहब का नबूवत का दावा कोई बंदा दिखा दे, उसको मुंह मांगा इनाम दिया। हाँ नहीं, मैं भी दूंगा, बल्कि मुझे तो बड़ी खुशी होगी ताकि मैं मिर्जा साहब को फारग करूं, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे पास कोई नबी नहीं। अगर मिर्जा साहब नबी हैं तो फिर साढ़े वालों फारग ने। ये जो हफीज शेख साहब है ना, इनके लिए एक शेर है, अकेला ही चला था अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। कारवां बनता गया, लेकिन इनका जो कारवां है ना वो अलहदा कारवां। ये कहते हैं मिर्जा साहब को मानो ना मानो, आपके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मिर्जा साहब फिर ऐसे ही उन्होंने इतना रफड़ डाला, घर बैठे रहते अपने कादियान में। ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ। ये भी सही ਚੌੜਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਚੌੜਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। यकीन ਸਾਰਾ करें ਖਤਮ कि ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਤਾ। ਮਲਕ ਕਾਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, तारिक चौहान साहब, ਤੂੰ ਕਿਸ तारिक ਚੀਜ਼ ਦਾ चौहान साहब, ਮੁਜਾहिਦ ਹੈ? जी जी तारिक चौहान साहब, आप भी ताजदारे मेरी जारी इस बात की नबूवत तायीद करेंगे, जिंदाबाद हैं? जी आप भी मेरी तायीद करेंगे कि मिर्जा साहब ने जहाँ पे भी अपने लिए नबी का लफ्ज इस्तेमाल किया है तो वो लुग़वी मानों में किया होगा, हाँ ये इस्तिलाही बिल्कुल मानों में उन्होंने कहीं पे मैं किए ही नहीं है। भाईजान जब मैं दुरुस्त बात यही की है। कहता हूँ, जब मैं ये कहता हूँ, मुझे तो काफिर, दज्जाल, खंजीर, पता नहीं किसका बच्चा कहते हैं। आप उनका कारोबार बंद कर देते हैं ना ये कह के। आबिद भाई ये क्या तमाशा है? वल्लाह आप यकीन कीजिए। ये सर यहाँ पे ना हम लोग टिकटॉक के ऊपर जो आए हुए हैं ना, तो हमारा मकसद ख़त्म नबूवत नहीं है, कुछ और है। बस खत्म, समझ गया। जी। बस ऊपर, उससे ऊपर ना कहीं, नहीं तो आप हमारी जान सही पर बात चुप। कर जहाँ तक बात है ना कारोबार की, आप यकीन करें अल्लाह के फजलो करम से मैं सबसे ज़्यादा यहाँ पे लाइव ऑन करता हूँ, ठीक है। अल्लाह के फजलो करम से मुझे टिकटॉक से 1 रुपया, एक सिंगल पैनी भी नहीं चाहिए। ना ही मेरा कोई ये कारोबार है, ना ही आपका मुझे तो कोई यहाँ से कारोबार पैसे नहीं आते है, हम दूसरों लोगों की जिन्होंने बनाए हुए का, आपका तो कोई, आप तो अपना खुद हक हाल की रोटी, हक हलाल की रोटी हाँ, बनाते हैं। अल्लाह ताला ने आपका तो इतनी कोई कारोबार नहीं। खूबसूरत, इतनी आसान रिस्क फराम किया है कि आप यकीन करें कि उठ के बस बैठना भी नहीं है, हाँ। आप लेटे लेटे ही हो जाना। है अकलात। अच्छा एक सवाल मैं भी कर दूं। दो बकरे खा जाते हैं, ये कोई कौन सा कलाम हुआ भाई? आप तारिक- यकीन करें तारिक चौहान कल भाई- मैंने दरवाजा तारिक खोला, चौहान भाई, यूसफी खड़ा हुआ था। यूसफी नहीं है मैं अपना, आज भी डबल ड्यूटी कर रहा हूँ हाँ। कलाल की। नहीं अपने आपका बच्चों कोई की। कारोबार नहीं है ये तो। अच्छा आपकी तो बात ही एक नहीं। सवाल मेरा भी ले लें यार प्लीज। अच्छा तारिक चौहान साहब, भाईजान सवाल तो ले लेंगे अबू बकर भाई, पहले ये जवाब दे दो। चौहान साहब बड़े खुशी से कह रहे हैं कि मलिक साहब आप हक कलाल का खाते हैं। ये कौन सा खाना हुआ? 2 बकरा खा जाना? ये कौन सा खाना हुआ भाई? ये कौन सा खाना? नहीं पीर साहब आजकल पप्पू बकरा मिर्जाई नहीं खा आ रहा, गए। आजकल बकरा नहीं खा रहा, 2 चिकन लेता है, 4 लगे बना लेता है उसकी ना। मैं ये चौपाया खा रहा हूँ ना, ब्रदर खा रहा आजकल ना, ये मैंने देखा है ना। देखे अच्छा ना पीर साहब, अभी बात हुई है कि मिर्जा साहब का नबूवत का दावा कहाँ है, तो जवाब मेरा है कहीं भी नहीं। मेरा कहीं भी सवाल नहीं। उसके ऊपर ये है कि नबूवत जो है, नबूवत है जिसे मिर्जा साहब नबूवत कहते हैं, मतलब जो नबी होता है,
مرزا صاحب نے اس کی تعریف کیا کی ہے؟ نبی کسے کہتے ہیں میں بتائیں؟ آپ کو بتا دیتا ہوں، مرزا صاحب نے اس میں کہا کیا ہے مشکل ہے؟ نبی سے یہ مراد ہے کہ کوئی شخص خدا تعالیٰ سے وحی پا کر تجدید دین کے لیے مامور ہو، یہ انہوں نے تعریف کی ہے مطلب یہ تجلیات نبی اسی الہیہ۔ کو کہتے ہیں نا، مرزا ہاں صاحب کی جی، نظر میں اس کو نبی کہتے ہیں۔ اور یہ ہاں دعویٰ جی، مرزا صاحب کا ہے یا نہیں؟ جی مرزا صاحب کا یہ دعویٰ ہے یا نہیں؟ یہ والا دعویٰ ہے مجدد ہونے کا۔ تو ہاں بس بات ختم ہوگی، پھر کون سا آپ کو دعویٰ چاہیے؟ نہیں ہے نہیں ہاں ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے، نہیں، نہیں ہے۔ مجدد ہونے کا تو ان کا دعویٰ ہے۔ ہاں یہ دعویٰ نہیں ہے، یہ تو سمجھا رہے ہیں کہ نبی کس کو کہتے ہیں، ہاں تعریف بتا رہے ہیں۔ یہ دعویٰ نہیں اچھا ہوتا ہے۔ نبی پھر آپ پیر صاحب بتائیں، نبی کی تعریف کیا ہے؟ مرزا صاحب کی نظر سے بتانی ہے آپ نے، اچھا اپنے ایک نہیں۔ مرزا منٹ، صاحب نبی کسے سمجھتے ہیں؟ ابو یہی بکر جو بھائی ایک منٹ ذرا، طارق چوہان بھائی، ہاں جی 4 نومبر 1886 کو لالا ملاوا مال نے ایک اشتہار دیا تھا ٹھیک نور ہے، افشاں اخبار کے اندر، ہاں جس کو پنڈت لیکھ رام نے تقریب ابراہیم احمدیہ کے اندر بھی اس کو نقل کیا، ٹھیک ہے، اور مرزا صاحب نے اس اشتہار کو مانا بھی کہ ہاں ایسا اشتہار دیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا ہاں اس میں ملاوا مال تو کہہ رہا ہے کہ مجدد ہونے کا دعویٰ جو ہے ان کو حکیم مولوی محمد شریف کلہ نوری ہاں ہاں ملاوا مال فرض کرتے پیروکار بھی ہوتا، پھر بھی اس کی بات کی کوئی نہیں، ہمیں بحث صاحب کی اپنی تحریر سے ثابت کرنا پڑے گا، کوئی ان کو کیا سمجھتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن دیکھیں نا طارق چوہان صاحب، جو اشتہار اس نے دیا، مرزا صاحب 17 سال بعد اس اشتہار کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن ہاں وہاں پہ وہ انکار نہیں کرتے کہ ہاں بھائی یہ بات جو ملاوا مال نے لکھی ہے یہ غلط ہے۔ بھئی یہ ہے ہی غلط، اس وجہ سے کہ مرزا صاحب نے تو کہا ہے مجدد جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے وحی پاتا ہے اور مکالمہ مخاطبہ الہیہ اس کو ملتا ہے، روح القدس سے اس کی مدد کی جاتی ہے۔ اب کسی کے کہنے سے تو کوئی مجدد نہیں نا بنتا، تو جو والے یہ لوگ ہیں ان کی بات کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں بنتی۔ تو مرزا صاحب نے تو اس کے لیے خود کہا ہے کہ مجدد جو مسیح موعود مجدد ہے، مجدد غلطیوں کی اصلاح کے لیے آیا کرتے ہیں، اور یہ کوئی نیا دعویٰ بھی نہیں ہے، اس سے پہلے 12 گزر چکے ہیں ان کے۔ طارق چوہان بھائی اصل میں یہ اشتہار جو انہوں نے دیا تھا نا، وہ اس بات پہ کیا تھا کہ جو ابراہیم احمدیہ میں مرزا صاحب نے لالا شرمپت رائے اور لالا ملاوا مال کو اپنے کچھ الہاموں اور پیشن گوئیوں کا گواہ قرار دیا تھا، ہاں بالکل، ٹھیک ہے۔ تو طارق اس صاحب آیا ہے نا، اشتہار میں یہ تعلق نہیں ہے مرزا صاحب کے بیان پہ کوئی بات نہیں کرے گا یہ جی طارق چوہان کا مرزا صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مرزا صاحب کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرتا ہے۔ آپ کیسے کہہ ابھی تو سکتے ہیں بھائی؟ جو تم رامزدگی کر کے گئے ہو وہ ٹھیک تھی طارق پپو چوہان مرزائی؟ صاحب میری بات سن لیں، تحمل کے ساتھ میری بات سنیں، دیکھیں میں نے کوئی غلط بات نہیں کری ابھی آپ کو، تم نے غلط بات حقیقی کی ہے، بات کریں۔ تم نے کہا ہے عبدالغفار جنبہ کافر ہے، اس وقت آپ نے بھی بہت کچھ کہا تھا، اب ہاں اس بات کو تو چھوڑ دیں، پھر میری ٹھیک ہے، بات پھر سن لو۔ مرزا غلام احمد بھی کافر ہے کیونکہ وہ 14ویں صدی کا ابھی میری مجدد بات ہے۔ سن لو، ابھی آپ میری بات سن لو سن کہ لاؤ۔ آپ کا مرزا صاحب علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، کیونکہ او ان کے بارے میں بھائی آپ بہت غلط الفاظ استعمال کیا آپ نے۔ تمہارا کوئی تعلق نہیں، تمہارا تو خلیفہ زانی ہے جو تمہارا یہ دیکھو مائی باپ یہ ہے، تو تمہاری جس نے زبان ہے گدی یار، بنائی یہ تو آپ کی 1956 میں، زبان ہے جس یار نے طارق گدی صاحب، بنائی مرزا اب آپ خاندان سے کی۔ کیا بات کی جائے یار، آپ مرزا صاحب کے تو بیہاف کس میں نے کوئی آپ کو بات نہیں کہا کریں میرے گے، سے آپ ان بات کو کریں؟ نہیں مانتے ہو، آپ ان کو نہیں مانتے ہو یار، آپ ان کی آپ بات نہیں اپنی کرو۔ مرزائیت کے کنجر خانہ میں آپ عیاشی کریں، آپ آپ کو مرزا کیا صاحب ضرورت ہے؟ آپ مرزا صاحب علیہ السلام کے بارے میں بات نہیں کریں، آپ کی مہربانی ہوگی، آپ تو اپنے جنبہ اچھا کھمبا تو کے بارے میں بات کریں، بس ربوی کافی ہے۔ کنجر خانہ کے متعلق بات کروں یا لفنگے کھوتے سالے کے متعلق، جو آپ کے مرزا جنبہ مسرور کھمبا کے کے بارے میں کاندھے پہ بات چڑھ کریں کر بس، عورتوں سے زنا کرتا ہے ہر وقت، اس کے متعلق بات کروں؟ جنبہ کھمبا کے بارے میں بات کریں بس۔ اچھا تو وہ لفنگا کھوتا سالہ آپ کے خلیفہ کا جو اس کے کاندھے پہ چڑھ کے زنا کر رہا ہے، اس سے بات نہ کریں؟ جنبہ کھمبا، ہاں تو پھر وہی گل ہے، 2 لکڑیاں 2 کانے، مرزا مریا ٹٹی خانے، جنبہ پھر ٹھیک ہے؟ شرم آنی چاہیے، تمہیں شرم شرم آ آنی رہی چاہیے، ہے؟ تم مجدد تو سمجھتے ہو اور نا، بھائی کم از کم مسیح تمہارے موعود جیسے علیہ السلام کو بدبختی تو مجدد یہی سمجھتے ہو نا اعتراض یار، کرتے ہیں شرم مرزا آنی صاحب پہ، چاہیے طارق تمہارے چوہان جیسے صاحب، شرم بدبختی آنی یہ چاہیے اعتراض آپ کو کرتے ہیں۔ یار،
जैसे बेगैरत आदमी हो कि यार। मिर्जा साहब जो थे वो सूरमार थे, तुम्हारे अपने खलीफा को थूकते भी नहीं है लिखा थोड़ी हुआ शक्ल पे, है, निके बशीर ने लिखा हुआ है अब्दुल गफ्फार जंबा की शक्ल पे थूकते भी नहीं है, ऐसी थूकते भी नहीं है। मिर्जा साहब सूर मार रहे थे वैसे पप्पू मिर्जाई, मिर्जा साहब सूर मार थे असी अब्दुल वैसे गफ्फार चिड़ी जंबा मार तो की थे शक्ल वो, पे थूकते भी नहीं है। और तुम्हारे असी थूकते निके भी नहीं बशीर है। ने लिखा हुआ है वो चिड़ी मार थे और फिर सूर मार भी बन अब्दुल गए। गफ्फार जंबा की शक्ल पे थूकते भी नहीं है असी। ठीक है ना, थूको कोई बात नहीं। तो मिर्जा खलीफा जानी जो है उसके मुंह पे गाली ना थूकते हो कि दो नहीं? पप्पू, गाली ना दो यार, उनके अकाबर हैं तो आप गाली ना दें। भाई पप्पू यही काम करने आया है यार उधर। आप इसको देखिए आटा ना, गाली देने का तारक मसीह जवान माउद जवाब नहीं दे अलैहिस्सलाम के सकता। बारे में क्या इसका कुछ ये कह रहा है खलीफा ये जानी के बेगैरत मुंह पे थूकते हो पप्पू मिर्जाई? मसीह माउद अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कह रहा है ये जो बेगैरत नंगी आदमी? औरतों को आप देख इसको कोई लगाम डालने और वाला नहीं मसीह है। मऊद आप तुम्हारे इसको मिर्जा उनके तो साहब की कुछ बात नहीं करने का लगते। क्यों देते हो? आप इसको बोले आप जैसे इसको बोलो तुम खंबा के बारे में जंबा को बात कह रहे हो वो करें, दज्जाल है, वैसे ही सिर्फ मिर्जा खंबा गुलाम के अहमद को लोग कहते सिर्फ हैं, खंबा के बारे जैसे में बात तुम्हारे किया जैसे करें, बदबख्त किसी हैं। के बारे में कोई बात नहीं किया करे। ना मुस्लिम माउद के बारे में बात करें, ना ही मिर्जा साहब के बारे में अच्छा बात करें। मुस्लिम मऊद सिर्फ कौन है खंबा तुम्हारा? जंबा के बारे में बात किया करें। वो नंगी औरतों वाला मुस्लिम मऊद जो मिस रूफो को सेसल होटल से लेके गया था। बेगैरत आदमी, बेगैरत आदमी शर्म कर। बगैरत मैं कैसे हो गया? काम तुम्हारे खलीफा जानी ने किए हैं, बगैरत मैं हो गया। अच्छा मुझे बताओ पप्पू मिर्जाई, मैं कब गया था पेरिस नंगी औरतों को देखने? जो गया उसको बगैरत कह दो, चलो इस तरह कह देते हैं। जो भी नंगी औरतों को देखने गया उसको हम बगैरत कह देते हैं। एक तुम्हारा खलीफा जानी था और एक उसके साथ उसका सहूलतकार था जफरुल्ला खान, दोनों को बगैरत कहोगे? और खलीफा जानी तो इससे भी बड़ा बगैरत था कि मिस रूफो को ले गया, जो सेसल होटल की एक तवाइफ थी कैबरे डांसर, उसको कादियान ले गया। किस लिए लेके गया था? वो कहते थे मैंने अपनी बेटियों को इससे सिखानी है अंग्रेजी। तो वो तो इटालियन थी बेचारी, जब और वो हवाला कोई मांगो टीचर भी तो नहीं फिर थी। चुप हो जाते हैं। हवाला दो पप्पू साहब। अब कैबरे डांसर थी, उसने अंग्रेजी कैसे सिखानी थी? कुछ और ही सिखाया होगा उसने। क्यों पप्पू? बेचारे के सिग्नल रेड हो गए हैं ना। मिस रूफो कादियान शिकन। पप्पू बोल ओए, पप्पू ए, पप्पू ए, पप्पू मर गया। पप्पू गया। चलो जा थोड़ी देर पप्पू बाद गया, फिर आ जाएगा पप्पू गया। वो नीचे महफिल उसके सिग्नल की वजह से। जी ख्वाजा साहब आप बताएं। मैं तो हाले सुनने नहीं लगे हैं इन्ना की हुणी स्टार्ट होई सुनना तकने क्या भाने ने पे। अल्लाह जी हाँ लेकिन प्लीज तारिक भाई ये मलिक साहब ये जेड़े ना इन्हें दिमाग वैसे नहीं कम करना, गाला ना कटाओ आप। अस आपस में सारे असां दा भरा ही हाँ, लेकिन खैर इस्लाम आना कि भाई जेड़े आज़म सल्लम ने उम्मती ने वो असां सारे मुसलमान आपस में भाई नहीं चौहान साहब गाली नहीं देते। ना ही सकने किया ना ही सकने जिला वो आखने ने पे कि असां आज़म सल्लम की मन्ने ही ना फिर तो भरा ही नहीं सकने। नहीं चौहान साहब गाली नहीं देते। चौहान साहब सिर्फ वही अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो मिर्जा साहब ने किए हुए हैं बस। अल्लाह फिर ठीक है, मैं इतना तो ना जाना लेकिन कोशिश करेंगे गाली ना देने बस। फिर बाकी पप्पू साहब क्योंकि तो आ गए। पप्पू साहब सिर्फ ये होता है कि हम अल्लाह का शुक्र है मैं कलमा पढ़ने वाला हूँ। इनके खलीफा जानी के छोटे भाई ने सारी बातें लिखी हैं। मिर्जा साहब कादियान का सारा पानी जब बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। मैं कुछ वहाँ छप्पड़ में नहाया करते थे, कुछ किताबें पढ़ी इनमें बहुत गंदा लिखा हुआ है, बहुत कुछ चिड़िए मार के खाया करते थे। खान भाई इनके अपने उनको बात करने दीजिए। अबू बकर भाई वो जो किताब आपने भेजी है वो किसकी है? वो मलफूजात है मिर्जा साहब के। मैं पढ़ सड़िया। अच्छा वो किसकी है? मिर्जा साहब के मलफूजात है। मलफूजात जिन्हें कहते हैं ना, मलफूजात। अपने किसने लिखी है ये? लिखी ज़हर मरज़ियों ने लिखी हुई है। मिर्जा साहब के मलफूजात जो है ना वो इकट्ठे किए गए हैं, यानी कि मिर्जा साहब की ही तहरीरें हैं ये। अच्छा क्या नाम है किताब का? मलफूजात मिर्जा जी? हाँ जी मलफूजात। ये तहरीरें नहीं है, बल्कि जो मिर्जा साहब ने वक्तन फवक्तन गुफ्तगू की ना, डायलॉग्स हैं उनके, वो हैं। मलफूजात है। तो इसमें मैं जो पढ़ सड़िया, ये सही है पढ़ सड़िया? हाँ जी बिल्कुल।
یہ میں اس میں جو کچھ انہوں نے لکھا ہے اس میں دو الفاظ وہ بہت ہی آپ سمجھ لیجیے گا کہ انہی دو الفاظوں کا انہوں نے استعمال کر کے کہا ہے. ایک ہے کنیت اور دوسرا ہے ایک منٹ پھر اس کو دیکھ لوں. کون سے ملفوظات کون سے ایڈیشن ہے کون سی جلد ہے؟ پتا نہیں نہیں اس کوئی ہاں اس میں پیر صاحب میرا کیا کہنا ہے کہ مرزا میں صاحب پڑھ سڑیا خود جس کو نبوت سمجھتے ہیں نا اس حساب سے وہ نبی وہ ہیں. باقی جو اسلام میں جو شریعت کے اندر نبی ہے وہ نبی نہیں ہے، لیکن مرزا صاحب جو تعریف کرتے ہیں نا نبی کی وہ نبی وہ ہیں، ان کا دعویٰ ہے وہ والا بھائی نبی مرزا صاحب نے کہا ہے مجدد کو انہوں نے نبی کہا ہے، تو ان سے پہلے 12 گزر چکے ہیں. مرزا صاحب کے مطابق تو وہ 12 بھی مجدد نبی تھے، اور جنبا صاحب اس وقت جو ہیں وہ بھی نبی ہیں. اس لیے کنیت اور کیفیت یہ دو الفاظ ہیں. کنیت اور کیفیت ہاں دو الفاظ ہیں جو انہوں نے استعمال کے لیے اسکانی صاحب یہ مجھے بھیجیں میں ذرا پڑھوں کیا لکھا ہوا. بلحاظ کنیت و کیفیت ہاں دوسروں سے بڑھ کر ہوا اور اس میں پیش گوئیاں بھی کثرت سے ہوں اسے نبی کہتے ہیں. یہ ہے وہ اصل مسئلہ کنیت و کیفیت. پوچھ لیجئے عامر نذیر صاحب سے کہ اس کا کیا مطلب ہے کنیت اور کیفیت کا، اگر بتا سکے تو اچھی بات ہے. کدھر چلا گیا بھائی جان؟ میں تو آج کل بتاتا نہیں ہوں. یہ ساتھ حفیظ صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، ان سے بھی سلام دعا کر لیں ملک صاحب. جی جی کنیت اور کیفیت میں ابھی آپ کو بھیج رہا ہوں چوہان جی ذرا یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ثابت کوئی نہیں کر سکتا دعویٰ میرا چیلنج. نہیں ثابت تو پیر صاحب وہ صحابہ سے مرزائی بھی نہیں کیسے کر کریں سکتے گے نا. جب دعویٰ ہے ہی نہیں ہے؟ ہاں مسئلہ یہ ہے ثابت تو خود مرزائی بھی نہیں کر سکتے نا، پرابلم تو یہی ہے. نہیں لیکن نہیں ہم جس کو نبی سمجھتے ہیں نا، جسے ہم شریعت اسلامیہ میں نبی سمجھتے ہیں، وہ تو ثابت کوئی بھی نہیں کر سکتا نا. نہ ہم ثابت کر سکتے ہیں نہ مرزا صاحب ثابت کر سکتے ہیں. لیکن مرزا صاحب جس کو نبی کہتے ہیں نا، جس کو مرزا صاحب نبی کہتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے نبی، وہ تو ہاں نبی دیکھیں ہے نا. نا. اب غلطی کا ہمارا ازالہ میں ابو بکر میر صاحب غلطی کا ازالہ مرزا صاحب نے کہا ہے میں رسول اللہ بھی ہوں اور نبی اللہ بھی. اور رسول اللہ کا انہوں نے کہا ہے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا، اور نبی اللہ کی طرف سے وحی پا کر باتیں بتانے والا. تو اس لحاظ سے وہ مجدد کی حیثیت سے وہ ساری باتیں کر رہے ہیں. تو یہ لغوی معنوں میں انہوں نے بس استعمال کی ہے. پڑھ سڑیا مطلب یہ ہے نا طارق صاحب، دیکھیں ہم کیا سمجھتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں، پیر صاحب کیا سمجھتے ہیں، فلاں کیا سمجھتا ہے، وہ کیا سمجھتا ہے، مجھے اس سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے. میں کیا سمجھتا ہوں مجھے اس سے مطلب ہے. ابو وہ بکر تو بھائی، ٹھیک ہے وہ اس میں جو ہمیں اللہ کوئی تعالیٰ وہ کے مجدد کو نبی کہہ انبیاء رہے ہیں آئے، تو یہ کوئی مسئلہ جو نہیں ہے. جو پہلے اللہ تعالیٰ کے انبیاء آئے وہ اصطلاحی زبان میں وہ نبی کہلائے، جبکہ مرزا صاحب اپنے آپ کو کہیں پہ بھی اصطلاحی معنوں میں نبی نہیں کہتے، وہ لغوی معنوں میں کہتے ہیں. ہاں بالکل پڑھ سڑیا. پڑھ کر اچھا بھائی یہ آج تو یہی چلے گا پڑھ سڑیا. یہ پتہ نہیں کہاں سے مجھے القاء ہوا. اچھا یہ القاء ہوا ہے آج پڑھ سڑیا. اچھا بھائی اچھا القاء ہے. اچھا بات یہ ہے آج ہمارے ایک ساتھی آئے ہوئے تھے عدنان ملیشیا سے غالباً یا کہیں اور. تو وہ قاسم نانوی صاحب کو وہ کافر بتا رہے ہیں. اچھا اقتباس جو لے کر آئے ہیں اس کا ایک لفظ بھی نہیں سمجھتے. میں نے کہا بھئی آپ پہلے اس کو پڑھو اور 2-4 لفظ ہی سمجھا دو اس میں کیا لکھا ہوا ہے. تحذیر الناس کا تو نہیں لے کے آئے تھے حوالہ؟ حاضر الناس. ہاں جی. ابھی دیکھیں پیر صاحب اس میں بھی مسئلہ وہی ہے نا کہ اس عبارت سے، جیسے میں نے وہاں پہ بھی بات کی تھی کہ ہر بندہ کوئی بھی معنی وہاں سے نکال لے، چاہے تو نکال کے کفر کا فتویٰ بھی لگا دے، ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جس بندے نے تحریر وہ لکھی ہے اس نے اس کا کیا مطلب بتایا ہے یا کیا معنی بتایا ہے یا وہ کیا سمجھا ہے، ہم نے وہ بات لینی ہے نا. اب میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ عبارت غلط ہے، نہیں اس طرح نہیں لکھنا چاہیے تھا. انہوں نے اپنی علمیت وہاں پہ جھاڑی ہے، صحیح ہے. مطلب میں کہہ سکتا ہوں کہ غلط ہے یار، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ابھی وہ میرے سامنے تو ہے نہیں.
और ना ही मेरी इतनी औकात है कि मैं काल में दीन को समझा सकूं। भजन बात ये नहीं है। जो तवील पीर साहब ने की है ना, वो पीर साहब ने भी उसको जो है ना बड़े अच्छे तरीके से उसको डिफेंड किया है। अच्छा, ये अस्कानी साहब, आपने अच्छा हुआ ये आपने मुझे भेज दिया, हाँ, तो ये मैंने पढ़ कई सुने दफा पढ़ा ना। हुआ है। इसमें जो आप कह रहे हैं ना कुन्नियत, ये नहीं है, उन्होंने लिखा है बालिहाज कमियत और कैफियत। ना 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 ना, ये है लिखा हुआ। एक मिनट, नीचे जाए, नीचे जाए, नीचे, यहाँ वो कटी हुई है, नीचे जाए, वही दो अल्फाज पर इस्तेमाल हुए हैं। एक मिनट मैं दे सकता हूँ, देखूं, शायद मैं भी गलत हूँ क्योंकि मेरी आंखें थोड़ी सी ठीक तो नहीं है। ये नीचे देखेंगे, नीचे वाजे होगा। अच्छा, ये किधर है, कौन सा लाइन है, कौन सा फिर, हाँ ये देखें, ये है बलिहाज कुनियत व कैफियत। नीचे जाएं, आखिरी 3 लाइनों से ऊपर, और बलिहाज, कमियत है भाई। अच्छा कमियत है, आप हाँ, फिर ठीक है। कमियत का मतलब है हुजम, समझ यानी गया। क्वांटिटी और क्वालिटी के लिहाज से ये। हाँ हाँ, वो समझा, मैं तो समझ गया। जी जी, मुझे उर्दू नहीं आती ना भाईजान। हाँ जी। वो है। और दूसरे है कि ये यहाँ पे ये भी देखें, हमारा मजहब तो ये है कि जिस दीन में नबूवत का सिलसिला ना हो वो मुर्दा है। अब देखें, वो कह रहे हैं नबूवत का सिलसिला। अब सिलसिला ये होता है कि 1400 साल बाद एक बंदा आए और बाद में कहा जाए इसके बाद तो कोई पेश कोई नहीं है। ये इसको सिलसिला कहेंगे हम? या तो मिर्जा साहब को झूठा मानना पड़ेगा या फिर मिर्जाइयों को झूठा मानना पड़ेगा। हाँ, बस वही 2 ही बातें हैं, याद हो।